आपने देखा होगा प्रीलिम्स में ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए 100% पता होने चाहिए, वो क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो। सबसे पहले मैंने एक्टिव रिकॉल की वीडियो बनाई थी, फिर ऑब्वियसली लोग आते हैं कॉपी करने, एंड आई थिंक इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। बोल कोई कुछ भी ले, करना बहुत कम लोगों को आता है। मैं जब आपको अपनी खुद की एंक की टेक्स्ट दिखाऊंगा, मैंने पूरा स्पेक्ट्रम की टेक्स्ट बना रखी है, मैंने पूरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की टेक्स्ट बना रखी है। मैंने पेपर 1 को अच्छे से रिवाइज किया था, तो 152 मार्क्स आए थे पेपर 1 में। ये मेंस में और भी ज्यादा एप्लीकेबल है, और मैं आपको इसको और यूज करके दिखाऊंगा। फर्स्ट वीक है, जब सेकंड वीक होगा तो क्वेश्चंस इसके भी होंगे, जो आज हम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस भी होंगे, और नेक्स्ट वीक के भी होंगे। अब सोचो जब 10th वीक होगा तो पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर रैंडमली इकोनॉमी का आ गया, फिर रैंडमली ज्योग्राफी का आ गया, फिर रैंडमली मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया, और आपने सब याद किया हुआ है। तो स्टैटिक पे तो ऐसी कमांड हो जाएगी कि यार अगर स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया तो हमारा तो गलत नहीं हो रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। Hello and good morning. I hope you can all see and hear me. Hello and a very good morning and welcome to this first session of mentorship in the Prelims Navigator program. And in this first week, our main target was to ensure that we consistently, with consistency, we are able to solve daily tests. See, a lot of you might still be studying for mains. A lot of you would also feel that this is too early for prelims, and honestly, since it is a long time for prelims preparation, the targets that we got in the first week were not that difficult to execute. जो targets आपको इस first week में मिले हैं वो relatively आसान targets हैं। relatively we only had to study 4 things. We had to study microeconomics, we had to study unemployment, we had to study poverty, and we had to study national income accounting. In our last session we had discussed कि यार ये चारों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, what are the things that are relatively important in these 4 topics, what are the things that are likely to be asked, and how to study them. We also discussed what sources to study from, right? Whether you want to follow your own previous notes, or there are also videos that were available to you along with PDF notes. There were also daily tests that were held. Now the fact of the matter is कि हम स्टार्ट कर रहे थे, एंड स्टार्ट हमेशा उन चीज़ों से करना होता है जो थोड़ी सी टफ नहीं हो, ताकि हमारा एक रिदम बन जाए। आज हम स्टार्ट कर रहे थे, तो ये जो डेली टेस्ट हमने करे हैं वो इन 4 टॉपिक्स के करे हैं, और ये 4 टॉपिक्स एक्चुअली दे आर नॉट दैट टफ, and in the prelims their weightage is generally less. It's not like they are not asked, but weightage कम रहती है, generally weightage थोड़ी सी कम रहती है इन टॉपिक्स की. Now for all other mentorship sessions that we are going to have here, अगर आप लोग सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ चैट में लिख दोगे तो मैं आपसे कम्युनिकेट कैसे कर पाऊंगा? So this can only happen in a structured way, right? So let me do this, that let me ask you questions and you can reply in yes or no, right? You can reply in yes or no. देखो मुझे ये भी पता है that out of the students that are here, 95% are serious, who are actually working hard. I saw the statistics on the dashboard, कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं. I know there are 5% जिन्होंने वैसे भी पढ़ाई नहीं करनी है. They are the ones who are the loudest कि सर ये है या नहीं है, ऐसे होगा या नहीं होगा. उन लोगों को हम अपनी पढ़ाई इंटरप्ट नहीं करने देते. I only want to talk to those जो थोड़े से सीरियस हैं and who have actually come here to study and to ensure कि उनका प्रीलिम्स में बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा जा सके. That is the complete idea. So now first question, we will now understand the first question. ये जो डेली टेस्ट थे, You had a test on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday. आज सैटरडे का है, सैटरडे वाला हम मान लेते हैं कि अभी आप दे दोगे, because it's been only 1 hour since the test was uploaded. ये 4 दिन, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, out of these 4 days, how many daily tests did you solve? And tell me honestly. अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं. Whatever your answer is, most of the people have solved all 4. मोस्ट लोगों ने चारों में से चारों सॉल्व किए हैं, मोस्ट ऑफ.
But I can see in the chat that there are people who have solved 2 also, 3 also. तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2 किए हैं, ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 किए हैं. अब देखो, this was just the first week when your targets were probably the easiest. इससे आसान टारगेट्स नहीं मिल सकते थे यार, मानोगे? 1 भी किया है किसी ने, I can just see in the chat. This was the first week when your targets were probably at your easiest level. Almost सबसे आसान लेवल पे जो पॉसिबल था उस पे आपको टारगेट्स दिए गए थे. तो भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे 4 टेस्ट नहीं किए. अब जैसे ही मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा व्हाई डिड यू नॉट डू ऑल 4, तो वो कहेंगे कि सर ये रीजन था, दिस वाज दी दिस थिंग हैपेंड, मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे, मेरे घर पे कोई बीमार था, मैं बीमार था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड सम और द अदर रीजन. ऐसा तो हो ही सकता है कि आपको कोई ना कोई रीजन मिल जाए. द पॉइंट इज दैट नन ऑफ दीज रीजंस आर रेलेवेंट, नन ऑफ दीज रीजंस मैटर. क्यों कह रहा हूं मैं? व्हेन यू गो टू द एग्जाम, इट विल नॉट मैटर कि आपके साथ क्या सर्कमस्टेंसेस थे. प्रीलिम्स वाले दिन सबको सेम पेपर मिलेगा और वही 2 घंटे मिलेंगे. दिस इज द फर्स्ट लर्निंग यू नीड टू टेक फ्रॉम हियर. If even in this 1 week you are failing to achieve your targets, ठीक है, तो आप खुद सोच लो कि which condition you are in. आप खुद जान लो आप किस कंडीशन में हो. अगर आप 1 हफ्ते में भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो ओके, दिस वाज प्रोबेबली द इजीएस्ट थिंग फॉर यू टू डू. के 4 टेस्ट देने थे और ये कुछ चंद वीडियोस देखनी थी, राइट? ये भी अगर हम मीट नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे क्या करेंगे? सेकेंड थिंग, जिन लोगों ने ऑल 4 कर भी लिए हैं, विच इज मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन नेक्स्ट वीक. एंड आई बस एक बात हम एक दूसरे से कमिट कर लेते हैं कि हम ऑनेस्टी रखेंगे यहाँ पे. इवन इफ आपने 0 दिए हैं, आप 0 ऑनेस्टली बताओगे. इफ यू कैन मेंटेन दिस नंबर थ्रू आउट दिस कोर्स, आप पूरे इस कोर्स में ये नंबर मेंटेन कर लो. ये नंबर का क्या मतलब है कि जितने टेस्ट करने थे उसके आपने 100% सारे टेस्ट किए हैं. इफ यू कैन मेंटेन दिस नंबर, दैट मीन्स यू आर नेवर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम. आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है प्रीलिम्स में. यू विल हैव सो मच प्रैक्टिस, राइट, एंड यू विल हैव सो मच एक्सपीरियंस कि वहां पे जाके इशू नहीं होगा. जिन लोगों ने चारों टेस्ट दिए, द पीपल हु हैव गिवन ऑल द टेस्ट एंड स्टडीड प्रॉपर्ली, डू यू नाउ फील कॉन्फिडेंट इन दीज सब्जेक्ट्स? That means you solved 100 MCQs this week. You guys solved 100 MCQs already in 4 days. थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक है. Now next question. Out of these 100 MCQs, and now this is the first mentorship lesson that I'm going to teach you. अगर आपका आंसर नो भी है तो कैपिटल्स में क्यों लिख रहे हो? Who are you trying to impress? देखो यार, ये चैट आपकी सिर्फ मेरे से कम्युनिकेट करने की है. आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपका नाम लेके आपको कुछ बोलूंगा तो. I will communicate as professionally as I can throughout the duration of this course. You should do the exact same thing. And you owe this not only to yourself, but also to the institution and to me. Because respect is a prerequisite of this course. Okay? So please, बिल्कुल professionally communicate करना है. Aspiring bureaucrat हो आप, right? Write professionally. Yes or no is being asked. Write yes or no. Now, this is the first lesson that I want you to learn today. And the first lesson is how to analyze a test. अब आप लोगों ने 4 टेस्ट दिए, मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मैं टेस्ट दूंगा और उसके बाद हम एनालिसिस सीखेंगे. One last question before I tell you how to analyze a test. Tell me very honestly, how many of you analyzed your mistakes? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने genuinely अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया इन टेस्ट में? That you said कि यार I am going to analyze my mistakes, कि मैं अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करूंगा. और नहीं किया तो नो लिखो. आपने देखो, एनालाइज का आप एक होता है कि मैंने सारी चीजें ध्यान से करी, और एक होता है कि मैंने बस अपना स्कोर देखा. अगर आपने सिर्फ स्कोर देखा है तो नो लिखो एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट. बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है. गुड. सचिन कह रहा है सर आई ओनली डिड इट फॉर 1 टेस्ट.
right? Somebody is saying, sir, I tried. I want you to be honest. If you are not honest, there will be no improvement. कभी improvement नहीं होगी, right? अब now let's keep your answer in mind कि आपने analyze किया था या नहीं किया था, and let's understand कि टेस्ट को analyze करते कैसे हैं, right? कि किसी भी टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, इस चीज को समझते हैं. कोई कह रहा है आई मेड अ नोटबुक फॉर मिस्टेक्स, आई एनालाइज ओनली 30 क्वेश्चंस. देखो, मैं आपको हायरार्की ऑफ स्टूडेंट्स बता देता हूं. कुछ लोग हैं जिन्होंने सारे टेस्ट ही नहीं दिए, ये लोग तो रेस में ही नहीं है अभी तक. फिर उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिए बट उनको एनालाइज नहीं किया. एंड मोस्ट लोग, जैसे आपको भी समझ आएगा, वो ऐसे हैं जिन्होंने एनालाइज करेक्ट तरीके से नहीं किया. सिर्फ टेस्ट देना टाइम वेस्ट है. इफ यू जस्ट गिव द टेस्ट एंड डोंट गो थ्रू दिस प्रोसेस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है? तो अगर टेस्ट को एनालाइज करने का टाइम नहीं है, आज के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज है, कुछ भी है, अगर टेस्ट को एनालाइज करने का टाइम नहीं है तो हम टेस्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है उसका. द ओनली एडवांटेज दैट वी डिराइव फ्रॉम गिविंग टेस्ट कम्स व्हेन वी एनालाइज देम. ओके, नाउ हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट. देखो, मैंने एक टेस्ट देखा जो 25 एमसीक्यूज का है. आपके 25 एमसीक्यूज का टेस्ट है. आप लोगों के हिसाब से एक 25 एमसीक्यू के टेस्ट में व्हाट इज अ गुड स्कोर? आपके हिसाब से गुड स्कोर क्या है? व्हाट इज अ गुड स्कोर? 25 एमसीक्यू का टेस्ट अगर है तो गुड स्कोर क्या है? और ये जो आंसर आप लोगों ने दिया है ना, इससे मुझे क्लियर हो जाता है कि आप में से किसी ने भी अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है. यार, मैंने आपको बस ये, अब ध्यान से सुनना. ओके, नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आई वांट यू टू लिसन टू मी केयरफुली. नो चैट विल बी टर्न्ड ऑन, नथिंग. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स. आपको मैंने कहा 25 एमसीक्यू का टेस्ट है, और इस 25 एमसीक्यू के टेस्ट में व्हाट इज अ गुड स्कोर, ये मैंने आपसे पूछा. आपने सीधा बोला 40 मार्क्स, 35 मार्क्स. आपको ये थोड़ी पता है कि एमसीक्यूज की क्वालिटी कैसी है. Are these tough MCQs? Are these easy MCQs? You don't know this, right? So you just by looking at this, कि यार 25 MCQ का टेस्ट है, आप नहीं बता सकते कि is it what will be a good score or what will be a bad score. गुड या बैड स्कोर एनालाइज करने का एक तरीका है जो आपने आज से अपने सारे टेस्ट में यूज करना है. In all the tests that you give from today, you are going to use this technique, and that is called avoidable mistakes. This is the analysis metric that we are going to use from today. जब भी हम कोई प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, जैसे हमने ये 25 एमसीक्यू के प्रैक्टिस टेस्ट दिए, there will be some questions where we will guess the answer. जो हमें होगा यार कि ये मैं 50-50 पे गेस कर रहा हूं. होता है ना ऐसे, आपने इन टेस्ट में भी किया होगा. और लेट्स से आपने 5 क्वेश्चंस में 50-50 में गेस किया, 2 आपके करेक्ट हो गए, 3 आपके रॉन्ग हो गए. तो जब आप लोग एनालिसिस करने जाते हो, आप अपने सिर्फ रॉन्ग क्वेश्चन देखते हो, और रॉन्ग क्वेश्चन देखने के बाद आप कहते हो यार अच्छा, उनके आप सोल्यूशन पढ़ लेते हो. बट टेक्निकली तो आपको ये भी नहीं आता था, आपको ये भी तो नहीं आता था ना. आपको बस यहां पर आपने गेस किया है, यू हैव जस्ट मेड अ 50-50 गेस, वो सही हो गया, अब आपने छोड़ दिया. इसी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना. यू विल बी इन अ फिक्स, राइट. इसीलिए इसको भी मुझे एनालाइज करना चाहिए, इसका भी सोल्यूशन मुझे पढ़ना चाहिए, बट हम इस चीज को मिस करते हैं, बहुत बार मिस करते हैं, राइट. दूसरा, ये चीज आपने नोटिस करी होगी कि कई बार जब मैं एक टेस्ट देता हूं, आफ्टर आई गिव अ टेस्ट, right after I look at the test, right after I look at a question rather, I am fairly confident in my mind कि ये मुझे आना चाहिए या नहीं. There are some questions, देखते ही मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए था, बट याद नहीं आ रहा, या मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, या ये क्वेश्चन हाँ यार दिस इज अ गुड क्वेश्चन. और कई बार कुछ क्वेश्चंस जो जान के ऐसे डाले भी जाते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस, टू टफ, some random source, some random thing has been asked. होता है ऐसा.
So there are some questions that you think that yes, I should have known them. And there are some questions where you feel that these are tough or these are out of bounds, out of syllabus. ये वो questions नहीं हैं जो मुझे आने चाहिए. अब, what is the concept of avoidable mistakes? Avoidable mistakes, as the name says, are those questions जो आपके गलत नहीं होने चाहिए थे. Let's say मैंने 25 MCQs का एक टेस्ट किया. अब मैं आपको बताता हूं ये टेस्ट आपने अप्रोच कैसे करना है. आपने क्वेश्चन 1 देखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा. ये सब प्रैक्टिस के टाइम पे करना है. थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपका, बट इससे एनालिसिस में बहुत हेल्प होती है. आपने क्वेश्चन 1 देखा, आपने क्वेश्चन 1 पढ़ा, यू रेड क्वेश्चन 1. ठीक है. इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो उस एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है पब्लिक गुड्स पे, राइट. मैंने यहां से क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, और ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन है, टेस्ट 1 का क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स. ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा. अब यहां तक पढ़ने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि मुझे आना चाहिए, है ना. ये मेरे कंटेंट में है, पब्लिक गुड्स पे डिस्कशन है कंटेंट में, है ना. तो मुझे ये आना चाहिए. आई शुड नो अबाउट दिस क्वेश्चन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, राइट. ओके. कंजम्पशन ऑफ वन individual, consumption of public good by one does not restrict consumption of same good by others. In case of public good, desire for exclusive consumption in public surges, all goods produced by the government are classified as public goods. अब ये 3 स्टेटमेंट देख के मुझे क्या समझ आया कि ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, मैंने पढ़ा हुआ है, राइट. तो while I am solving the test, मैं इस क्वेश्चन पे मार्क करूंगा ऐसे, यस, कि मुझे आना चाहिए, या आप इसको अनमार्क्ड भी छोड़ सकते हो, ठीक है. इसका मतलब ये टिक, ये जो मैंने यहां मारा है क्वेश्चन 3 पे, मैं अपने दिमाग में ये चीज परसीव कर रहा हूं दैट दिस क्वेश्चन आई शुड गेट राइट. ये क्वेश्चन मेरा जरूर सही होना चाहिए जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं. तो सिमिलरली लेट्स से अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड. लेट्स से मुझे वेबलिन गुड्स के बारे में कुछ नहीं पता, या मेरे सोर्स में वेबलिन गुड्स नहीं थे, मुझे एक फेंट आइडिया है और मैंने पहला वर्ड ही देखा वेबलिन इफेक्ट. तो वेबलिन इफेक्ट देख के मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन अब मेरे सोर्स से डायरेक्टली तो नहीं है, मेरे को कुछ ना कुछ गेस वर्क करना पड़ेगा. तो मैं इस क्वेश्चन पे एक सर्कल मार्क कर लूंगा. अब आप लोग अगर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो इन क्वेश्चंस का नंबर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं. कैसे लिखना होगा, एक नोटबुक यहाँ पे बनाइए, उसमें लिखिए ऐसे 2 टेबल्स. एक में लिखो एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट का मतलब है कि मेरे हिसाब से मेरे सही होने चाहिए. तो यहां पर मैं क्वेश्चन 1 को लिखता करेक्ट में, और इसमें मैं गेस करने वाला हूं, तो जो गेस वाले हैं उनको मैं लिखता यहां पर. तो मैं क्वेश्चन 2 को लिखता गेस में, कि कुछ ना कुछ गेसिंग मैंने करी है, कुछ लॉजिकल गेसिंग, कुछ तिगड़म, कुछ मैंने लगाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. शायद मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन करी हो, कुछ ना कुछ करा होगा, राइट. ऐसे मैं आगे चलता जाऊंगा. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें एलोकेटिव एफिशिएंसी और मोनोपोलीज की बात है, मैंने पढ़ रखा है, तो मैं इसको किस में डालूंगा, 100% करेक्ट में. तो ऐसे जब मैं 25 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहा हूं, व्हेन आई एम गिविंग अ 25 क्वेश्चन टेस्ट, तो मेरे पास एक शीट बनेगी जिसमें क्या लिखा होगा, इस साइड पे लिखा होगा करेक्ट. ये वो नहीं है जो मेरे सही हुए हैं, ऑफ कोर्स दीज आर द वंस दैट आई शुड गेट करेक्ट, दैट आई नो 100% एवरीथिंग अबाउट. तो मान लो यहां पर कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, और यहां है गेस वर्क, और यहां पर कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है. अब जब मैं अपने आंसर देखूंगा, पहले मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को चेक करूंगा, इसमें मुझे क्या लग रहा है. इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे यहां पर क्वेश्चन 1 की बात हमने करी, मुझे क्या लग रहा है, मेरी होनी चाहिए 100% एक्यूरेसी. मतलब मुझे 100% आना चाहिए, मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे नोट से है, 100% मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए. आप देखोगे कि इनमें भी गलतियां होंगी. हियर आल्सो यू विल हैव रॉन्ग क्वेश्चंस, and these are the most dangerous mistakes that you can make in prelims. ये सबसे डेंजरस मिस्टेक्स हैं. क्यों? क्योंकि यार ये तो वो है ना जो मुझे आते हैं. These are the ones that I think I know 100%, but इसमें भी मेरी रीडिंग में फॉल्ट है, इसमें भी मेरी परसेप्शन में फॉल्ट है. तो these are the ones where there is the maximum chance of you actually getting eliminated from the prelims because of these mistakes. आपने देखा होगा प्रीलिम्स में ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 100% पता होने चाहिए, वो क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो, राइट.
सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट डाउन सबसे पहले, कि जो ये करेक्ट वाले हैं, जो आपको लगता है आपके करेक्ट होने चाहिए थे, सबसे पहले आप इनको चेक करोगे। सेकंड, जो ये गेस वर्क वाले हैं, अब मान लो यहाँ पे लेट्स से देयर आर 8 क्वेश्चंस हियर और आपके 4 सही हुए हैं, 4 गलत हुए हैं, लेट्स से आपने कुछ गेस वर्क किया था इन सब में, रिगार्डलेस ऑफ एनी आउटकम, चाहे 8 के 8 सही हैं, जितने भी आपने पहले से बिफोर सीइंग द आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 अपने गेस वर्क वाली लिस्ट में लिखा था, all of them need to be analyzed and now you need to go back to your source। इन सब में आपको सोर्स पढ़ने की जरूरत है, सोल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट रीड द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट, गो बैक टू द सोर्स, जहां से आपने ओरिजिनली पढ़ा है वहां जाओ, वहां देखो। अब क्या करो, जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है यार मेरे को ये नहीं आता था, मुझे गेस वर्क करना पड़ा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अब अपनी नोटबुक खोलूंगा, I will open my notebook या whatever my notes rather, whatever my notes of economics are, जो भी नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूं उनको सामने खोल के रखूंगा कि यार सामने, अगर मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं, मतलब अगर मुझे पूरे नोट्स याद हैं, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है? अगर हो सकता है मतलब मेरी रीडिंग में प्रॉब्लम थी, राइट? और नहीं हो सकता, मान लो मेरे नोट्स के बाहर से क्वेश्चन है, देन आई विल गो एंड रीड सोल्यूशन। नहीं तो आप लोग टेस्ट में सोल्यूशन ही पढ़ते रह जाओगे और आपका बहुत टाइम लग जाएगा। जो आपको पहले से 100% श्योर थे कि मेरे सही होंगे, आपने यहाँ पे एक लिस्ट में लिखे 100% श्योर हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, जो एक्चुअली आंसर आपके सही हो गए, उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आपको भी लग रहा था आपका सही होगा और एक्चुअली भी आपका सही हुआ है, तो उसको दोबारा मत देखो। जो आपको लग रहा था मेरा 100% करेक्ट होना चाहिए लेकिन वो गलत हो गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने कोई मेजर सिली मिस्टेक कर दी है, मत उनको बहुत ध्यान से एनालाइज करो। आपने पढ़ा नहीं, दीज आर द मिस्टेक्स दैट विल मेक यू नॉट क्वालिफाई प्रीलिम्स। बिकॉज आपने पहले भी देखा होगा, प्रीलिम्स में हम इसलिए नहीं फेल होते कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए, जो क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, जो हमें लगता है हमें आते हैं, वो गलत करके आते हैं। ऐसा ही है ना? आई एम श्योर यू विल रिलेट विद दिस। तो इस प्रॉब्लम को यही सॉल्व करते हैं। सो यू विल हैव नाउ 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। You thought that they are going to be 100% correct and they are correct, don't look at them again. You thought they are going to be correct and they are wrong, look at them very carefully. And in any question that you have made guesswork, even if it is correct, you need to analyze it properly. What is the mechanism to analyze a question? The mechanism to analyze is, analysis का तरीका ये है, you look at the question, उसके बाद उसका solution नहीं देखना, अपना source खोलो, देखो क्या मेरे सोर्स में इसका आंसर दिया था, क्या मेरे सोर्स में इसका आंसर था? अगर इसका आंसर मेरे सोर्स में था, इफ द आंसर वाज देयर इन माय सोर्स, देन जस्ट रीड फ्रॉम हियर अगेन एंड अंडरस्टैंड, समझो, थोड़ा सोचो इस बारे में कि मेरे से क्या गलती हुई। अगर इसका आंसर मेरे सोर्स में नहीं है, देन आई नीड टू मूव ऑन एंड देन आई नीड टू लुक एट सॉल्यूशंस एंड देन आई नीड टू थिंक, जो मेरा टेस्ट का सॉल्यूशन है उसको मैं नोट डाउन करूंगा और उसको मैं अपने सोर्स में ऐड करूंगा। Whatever extra information I gain here, I am going to take it to my source. अगर मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पढ़ने लग जाऊं और उसको एनालिसिस कहूं, तो टेस्ट देने मुझे 3 घंटे लगेंगे। इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। अभी आप लोगों को हो सकता है मिल गया हो टाइम, बाद में डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने ये अप्रोच फॉलो करनी है। पहले बताओ ये अप्रोच समझ आई, फिर हम अवॉइडेबल मिस्टेक्स की बात करते हैं। ये अप्रोच समझ आई? कुछ लग रहा है इससे वैल्यू एडिशन हो पाएगी? अब सेकंड चीज है कि यहां पर कई ऐसे क्वेश्चन होंगे, देयर विल बी सम क्वेश्चंस हियर, जहां आपको लगेगा कि मुझे आना चाहिए था बट फिर भी मेरे को गेस वर्क करना पड़ रहा है, राइट? अब आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। इससे तो स्कोर नहीं पता चलेगा, ये बस मैं आपको एनालिसिस का तरीका बता रहा हूं कि किसी भी टेस्ट को बेस्ट तरीका एनालाइज करने का ये है। मैंने सॉल्व करते हुए ही कह दिया कि ये मुझे 100% लगता है मेरा सही होने वाला है, ये अगर सही हो गया तो मैं इसको एनालाइज नहीं करूंगा। मैंने सॉल्व करते ही कह दिया ये क्वेश्चन मेरे को 100% सही लगता है, बाद में अगर वो क्वेश्चन गलत निकला तो उसको बहुत ध्यान से एनालाइज करूंगा। और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करते ही कह रहा हूं मैं इसमें गेसवर्क कर रहा हूं, पता होता है अंदर से कि मैं गेसवर्क कर रहा हूं, मैं तिगड़म लगा रहा हूं, मैं ऊपर से अपना आई एम, इवन दो इट्स इन माय नोट्स, मेरे को याद नहीं है, मैं थोड़ा तुक्का मार रहा हूं, सही भी हो गया गलत भी हो गया, उस सारे गेसवर्क वाले क्वेश्चन को तो मैं एनालाइज करूंगा ही करूंगा, तभी तो मेरी इंप्रूवमेंट होगी, नहीं तो टेस्ट देने का पॉइंट क्या है। दूसरी चीज, अब ये था हाउ टू एनालाइज अ टेस्ट। सेकेंड थिंग इज व्हाट अबाउट योर स्कोर। जो हम बात कर रहे थे कि आइडियल स्कोर क्या है,
स्कोर क्या आइडियल है इसकी बात करते हैं। फॉर एन आइडियल स्कोर यू डोंट नीड टू लुक एट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। जब आप टेस्ट को खत्म कर लोगे, लेट्स से अब ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बस ये सैंपल रखे हैं आपको ये चीज समझाने के लिए। ये क्वेश्चंस का टेस्ट है, मान लो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे रैंडमली फ्रॉम ऑल द 5 टेस्ट। अब मैं दोबारा से सारे क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से देखूंगा। मैंने सॉल्व कर लिया है, मैंने एनालाइज कर लिया है, अब मैं जानना चाह रहा हूं मैंने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, राइट। मैं पूरा एनालिसिस कर चुका हूं। मैं देखूंगा यार पहला क्वेश्चन पब्लिक गुड्स पे था, क्या मैंने पब्लिक गुड्स पढ़ा है? यस। क्या मुझे पब्लिक गुड्स आना चाहिए? यस। क्या एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट को पब्लिक गुड्स आते होंगे? आते ही होंगे। अच्छे एस्पिरेंट को तो आते ही होंगे, जिसका प्रीलिम्स क्लियर होना है उसको तो आते हैं। अब अगर मान लो मेरा ये क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब दिस मिस्टेक कुड हैव बीन अवॉइडेड। ये गलती सिर्फ मेरी वजह से हुई है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। जैसे आपको एग्जैक्टली अगर मैं एग्जांपल देके कहूं, मान लो मेरे एक टेस्ट में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। पहला क्वेश्चन गलत हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स, एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल माइलोमा। मान लो यूपीएससी पूछ ले कि मल्टीपल माइलोमा नाम की डिजीज का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। आप में से जो डॉक्टर है उनको भी नहीं आता होगा मोस्टली, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है, राइट। जो नॉन डॉक्टर है उनको तो नहीं पता। अब मेरे ये 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मुझे देखते ही समझ आ रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए था। दिस शुड नॉट हैव बीन रॉन्ग, दिस मिस्टेक वॉज अवॉइडेबल अगर मैं पढ़ाई अच्छे से करता। ये क्वेश्चन चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई कर लेता, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत होना ही था, या मैं छोड़ ही देता इसको एट मैक्स, क्योंकि ये तो मेरे को नहीं आ सकता था। इवन इफ आई वाज रीडिंग 24 आवर्स अ डे आई वुड नॉट नो द आंसर फॉर दिस, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई एम रीडिंग फॉर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब गलत होते हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब गलत होते हैं इनको मैं कहता हूं अवॉइडेबल मिस्टेक्स। मैं कहता हूं अवॉइडेबल मिस्टेक। अवॉइडेबल मिस्टेक का क्या मतलब है? आई कुड हैव गॉटन दिस राइट, I could have gotten this right, but I have gotten it wrong. This mistake could have been avoided. किसी भी टेस्ट में आज से ये रूल बना लो, आज से ये रूल बना लो कि किसी भी टेस्ट में a good score means the number of avoidable mistakes are less than 2%, 3%. मैं आपको rather than percentage terms avoidable mistakes का एक रूल बना देता हूं। अगर 25 क्वेश्चन का टेस्ट है तो the maximum avoidable mistakes you can have is 2. अगर 50 क्वेश्चन का टेस्ट है maximum you can have is 4. अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट है rather you can have 3, and 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो you can have 4. अगर आपके 25 क्वेश्चन के टेस्ट में 2 से ज्यादा अवॉइडेबल मिस्टेक हो रही है तो आपका स्कोर खराब है। चाहे आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चन सही हुए हों और 3 गलत हुए हों, बट अगर ये तीनों ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो आपको पता है कि ये मिस्टेक अवॉइड की जा सकती थी, देन दिस इज ऑल्सो बैड परफॉर्मेंस। आप एक 100 क्वेश्चन का टेस्ट दो और उसमें से आप देखो कि आपके 92 क्वेश्चन सही हैं और 8 ही गलत हैं, और आपको लगेगा ये तो मैंने पता नहीं कितना ही अच्छा परफॉर्म कर दिया है। बट अगर ये 8 सारे वैसे हैं जो मिस्टेक्स अवॉइड की जा सकती थी, तो इवन दिस इज अ बैड परफॉर्मेंस। एंड इवन फ्लिप साइड इज ट्रू। हो सकता है आप कोई 100 क्वेश्चन का टेस्ट दो और आपके सिर्फ 20 ही क्वेश्चन सही हुए हों, and you have made 30 mistakes, but ये 30 mistakes ऐसी हैं कि यार जैसे मैंने बताया मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस पूछ लिया, कोई मेडिकल कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो आप वैसे ही नहीं पढ़ रहे थे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें ना एक टेंडेंसी होती है कि हम ओवरऑल स्कोर देखते हैं, 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 200 नंबर का टेस्ट दिया, कितने मार्क्स आए। मार्क्स डोंट मैटर। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर। दोबारा बोलेंगे, मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर, मार्क्स डोंट मैटर। इन अ टेस्ट मार्क्स डोंट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज अवॉइडेबल मिस्टेक्स। व्हेन यू आर लुकिंग एट प्रैक्टिस टेस्ट, मार्क्स डोंट मैटर। अपने मार्क्स से खुद को जज मत करो, अवॉइडेबल मिस्टेक से खुद को जज करो। अगर पूरा टेस्ट ही ऐसा है जो आपके नोट से है तो आपके 100% ही आने चाहिए, और अगर पूरा टेस्ट ही ऐसा है कि आपने कुछ भी नहीं सुना आज तक, कि जैसे मुझे कोई वेटनरी साइंसेस के पेपर दे दे
मैंने वो सब्जेक्ट आज तक पढ़ा ही नहीं है ना, तो मेरे उसमें 0 ही आने चाहिए। एंड 0 भी खराब स्कोर नहीं है, नेगेटिव भी खराब स्कोर नहीं है, क्योंकि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था, राइट। ओनली मिस्टेक्स दैट वर अवॉइडेबल दैट यू हैव कमिटेड। कोई आपने अवॉइडेबल मिस्टेक करी है, वही प्रॉब्लम है। ये बात समझ आई? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू कि यार, इफ आई आस्क यू कि यार 25 एमसीक्यू के टेस्ट में व्हाट इज अ गुड स्कोर, तो आपने कहना है सर लेस देन 2 अवॉइडेबल मिस्टेक्स। बस, स्कोर नहीं बता सकते। देयर इज नो आंसर टू अ स्कोर। अगर 25 के 25 आसान है तो 50 मार्क्स आने चाहिए, और अगर सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो ठीक है, फिर होगा डिफिकल्ट, मुझे अपनी अवॉइडेबल मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। अब जो आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे, आई मीन जस्ट लास्ट क्वेश्चन, देन वील मूव ऑन टू एक्टिव रिकॉल। अब जो आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे, राइट, या नेक्स्ट वीक, अब सैटरडे को हम दोबारा मिलने वाले हैं, नेक्स्ट सैटरडे, उसके बीच में आपके 5 से 6 टेस्ट हो जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये जो 5 से 6 टेस्ट आप दोगे, यू हैव टू एनालाइज देम इन दिस वे। आपने अपने तरीके से एनालाइज कर लिए 4 टेस्ट, मैंने जान के आपको पहले दिन नहीं बताया ये सब, ताकि आप देख सको, डिफरेंस फील कर सको। अब ये 5 से 6 टेस्ट जो आप दोगे, यू हैव टू नाउ एनालाइज देम इन द वे दैट आई हैव रिकमेंडेड यू। अब ये जो रिकमेंडेशन है, इस हिसाब से आप एनालाइज करोगे अब, एंड आई एम श्योर दैट यू विल फील द डिफरेंस। कैन वी ऑल एग्री दैट दिस इज अ बेटर मेथड टू एनालाइज योर टेस्ट? That this method will mean that we will have better outcomes with the same test. So अब we are going to do the same thing for the next week. This is your first homework for the week. Next 5 to 6 tests you have to analyze like this. Again, there is a hierarchy of students. Let me tell you very quickly. There will be some people who will not give the tests. Then there will be some who will not analyze them at all. जो खोल के ही नहीं देखेंगे, अपना स्कोर देख के खुश हो जाएंगे। देन देयर विल बी सम हु विल नॉट एनालाइज इट प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बताया। एंड कुछ होंगे जो प्रॉपर एनालिसिस के बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे अपने स्टडिंग टेक्निक में, दे विल नॉट मेक एनी इंप्रूवमेंट। एंड दिस प्रोग्राम विल ओनली बेनिफिट यू इफ यू डू ऑल 4 थिंग्स, कि आप पहले टेस्ट भी दो, फिर आप उसका एनालिसिस भी करो, उसको भी वैसे करो जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, करना कैसे है प्रॉपर्ली वो बताने के लिए मैं हूं आपके साथ, राइट। आई एम ऑलवेज हियर टू टेल यू व्हाट टू डू, बट आई कांट मेक यू डू इट, है ना। आपने प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, और फिर आपने अपनी मिस्टेक्स देखनी है। मिस्टेक्स नॉट ओनली इन द टेस्ट बट मिस्टेक्स ऑल्सो इन रीडिंग, कि यार मैं पढ़ रहा था, मैंने ये चीज इग्नोर कर दी, ये मेरी गलती है, राइट। दिस इंप्रूवमेंट यू हैव टू मेक। अगर ये सब कुछ आप करते गए टिल मार्च, जब तक हम डेली टेस्ट कर रहे हैं, टिल मार्च, इफ यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, 100% यू विल डबल योर चांसेस ऑफ मेकिंग इट थ्रू प्रीलिम्स। जो भी आपके चांसेस थे वो डबल हो जाएंगे अगर आपने ये चीज अचीव कर ली तो। अब लेट अस नाउ कम एंड अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज सेशन, विच इज एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल में हम एक बहुत ही अमेजिंग चीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिवली ये जो एक्टिव रिकॉल है ना, प्रोग्रेसिवली ये बहुत ज्यादा टफ होता है वाला आप लोगों के लिए, बहुत टफ होने वाला है। मैं बता देता हूं कैसे, बट इससे हेल्प सबसे ज्यादा होगी। पहले तो मैंने इसके कुछ कार्ड्स बनाए हैं जिससे आपको याद करना है। आप लोगों ने अभी तक जो टेस्ट दिए हैं, दे हैव बीन इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब? आज मैंने ये पढ़ा, कल इसका टेस्ट है, कल मैंने जो पढ़ा उसका परसों टेस्ट है। तो जो बेसिकली मैं आज पढ़ रहा हूं उसका मैं कल टेस्ट दे रहा हूं। आज जो हम करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल, हम 45 to 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस आर इन रैंडम ऑर्डर। जो आपने पिछले 5 दिन में पढ़ा है उसके रैंडम ऑर्डर में है। अब ये कुछ कार्ड्स हैं, यू डोंट नीड टू नो द नेम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एंकी। आप इसको खुद भी यूज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको खुद इतना टाइम लगाएं, बिकॉज मैं कर रहा हूं आपके लिए, राइट। I am doing most of it for you, so you don't need to put your own effort into it. अब मैंने इसमें कुछ कार्ड्स बनाए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो हमने
जहां जिस स्क्रीन से स्टार्ट किया था, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी रिव्यू स्टार्ट होगा, हमारे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, आपको मैं 30 सेकेंड्स दूंगा उसके बारे में सोचने के लिए, देन आई विल फ्लिप इट। फ्लिप मतलब मैं इसको क्लिक करूंगा और फिर आपको उसका आंसर दिखेगा। तो यू विल सी अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, अभी आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा, आपने उसका आंसर सोचना है, 30 सेकेंड्स है आपके पास, फिर मैं फ्लिप करूंगा और आपको आंसर दिखेगा। ऐसे करके हम 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो 45 क्वेश्चंस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस हैं इन वॉट एवर यू हैव रेड इन द लास्ट 1 वीक। जो आपने लास्ट 1 वीक में रीड किया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये 45 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक जब हम फिर से 50 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीक मतलब कैलेंडर के हिसाब से अगले सैटरडे वी विल डू 50 मोर क्वेश्चंस। उन 50 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस यहां से होंगे और कुछ क्वेश्चंस उनसे होंगे जो आप नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले हो। तो आपने फॉर एग्जांपल इस वीक पढ़े 4 टॉपिक्स। दिस वीक यू रेड माइक्रो इकोनॉमिक्स, you read unemployment, you read poverty, and you read national income accounting. Next week you are going to read inflation, money, inequality. तो जो इसके अगले वीक का एक्टिव रिकॉल होगा, जो कमिंग सैटरडे का एक्टिव रिकॉल होगा, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के भी होंगे, पॉवर्टी के भी होंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के भी होंगे, इन्फ्लेशन के भी होंगे, मनी के भी होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के भी होंगे, ठीक है। उसके अगले वीक जो पहले पढ़ा हुआ है उसके भी हैं, जो पिछला वीक था उसके भी हैं। तो इतने क्वेश्चंस की हमारी रिपोजिटरी बन जाएगी कि जब हमें एंड में, मैंने वो जो शेड्यूल आपको समझाया था कि 3 दिन में रिवाइज करना है, 2 दिन में रिवाइज करना है, वी विल हैव ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिटन इन दीज कार्ड्स। और फिर हम एक दिन बैठेंगे 5-6 घंटे और पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज कर पाएंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? कि इस वीक तो वही पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वीक था, इस वीक तो वही पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ा था, बट आगे पुराने वीक्स का भी क्वेश्चन आएंगे। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, इतनी रिवीजन हो जाएगी। अब लास्ट आपको इंस्ट्रक्शन है, अगर आपके सामने कोई नोटबुक, अगर ये सामने कोई नोटबुक, कोई आपके सामने कोई नोटबुक, कोई नोट्स, कोई आपके इकोनॉमी का सोर्स कुछ भी खुला हुआ है, तो प्लीज उसको बंद कर दो। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है, इसको प्लीज बंद कर दो। 30 सेकंड्स में हम अपना एक्टिव रिकॉल स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे देखो, आंसर आपको चैट में नहीं लिखना है, आंसर आपको अपने माइंड में लिखना है या अपने नोट्स में लिखना है। कीप अ नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। एक्चुअली बेस्ट आइडिया है, एक ब्लैंक नोटबुक अपने सामने रख लो, एक ब्लैंक पेज ले आओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, गेट अ ब्लैंक पेज। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपने उस ब्लैंक पेज पे लिखना है। ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आंसर लिखने की जरूरत है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिखे उसका आंसर आपने लिखना है। 1 मिनट का टाइम है, प्लीज एक ब्लैंक पेज ले आइए। आपको मैं आज पावर ऑफ एक्टिव रिकॉल दिखाऊंगा। कोई नोट्स, कोई सोर्स आपके सामने नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टेबल पे भी कोई ऐसे स्टिकी नोट्स में कोई चीजें लिखी हैं तो उनको अभी के लिए हटा दो, या आप किसी और टेबल के लिए बैठ जाओ फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। आपके सामने ब्लैंक होना चाहिए सब कुछ। आप मानो आपका प्रीलिम्स का टेस्ट हो रहा है, इट शुड बी ब्लैंक एंड यू अज्यूम दैट यू आर गिविंग द प्रीलिम्स टेस्ट। बी एज सीरियस अबाउट इट। गेट अ ब्लैंक पेज, और कुछ नहीं खोलना आपने। डन? चलिए स्टार्ट करते हैं। होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी। कोई सामने हिंट, कोई सामने कंटेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। ये लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में रिलेशनशिप। आपको सिर्फ सोचना है कि मैंने पढ़ा था क्या कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और मैंने ये भी पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ऐसा क्यों है? एंड यू हैव 20 more seconds to think about this. याद करो, that's it. इतना ही टाइम था, इतना ही टाइम मिलेगा पर क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या है? देखो यार, हमने क्या पढ़ा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। सो एवरी न्यू थिंग दैट आई हैव, एवरी वन मोर थिंग दैट आई हैव, आई विल फील लेस हैप्पी। मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी में थोड़ा और कम, तीसरी में थोड़ा और कम, ऐसा। इसीलिए फॉर द नेक्स्ट वन आई विल बी विलिंग टू पे लेस। पहली आइसक्रीम खा के मुझे बहुत बढ़िया लगने वाला है, तो आई एम विलिंग टू पे मोर फॉर इट। उसकी अगली आइसक्रीम खा के थोड़ा कम अच्छा लगने वाला है, तो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगेगा। सो एज द क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज एंड द डिमांड कर्व विल लुक लाइक दिस।
अगर आपको ये रिलेशनशिप समझ नहीं भी आया, अगर आपको सिर्फ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और डिमांड कर्व ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पता है, इट्स फाइन। नेक्स्ट, अब ये देख रहे हो ये रैंडम ऑर्डर में है। पहला क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, दूसरा क्वेश्चन पॉवर्टी से है। व्हाट इज एचडीआई, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और ये आईएचडीआई से डिफरेंट कैसे है। अगेन यू हैव 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दिस। तो हम एक टाइमर भी चला सकते हैं। 25 to 30 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ सोचना है कि आईएचडीआई क्या है और ये एचडीआई से डिफरेंट कैसे है। एंड जो भी हो ना, एटलीस्ट ये वर्ड एचडीआई अपने सामने लिख लो। Whatever is the keyword of the question, at least write that word in front of you. तो अब HDI में तीन चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और IHDI जो है वो इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI है, और दोनों ही UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था। कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन हायर है देन अदर स्टेट्स, ऐसा क्यों है? ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं आपको, आई एम नॉट शोइंग यू दी ऑप्शंस, खुद सोचो क्या रीजन होगा। ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स, व्हाई? ठीक है, रीजन देखते हैं। बिकॉज हर स्टेट का प्राइस लेवल डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, हम पॉवर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंजम्पशन के बेसिस पे। हम कहते हैं कि एक बेसिक बास्केट ऑफ कमोडिटीज है जो सबके पास होना चाहिए, राइट? अब वो बास्केट ऑफ कमोडिटीज अगर सबके पास नहीं है तो, और उसको कंज्यूम वो नहीं कर सकते, तो वो पुअर है। हर स्टेट में उस बास्केट की कॉस्ट अलग है, तो पॉवर्टी लाइन अलग है, राइट? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पॉवर्टी का था, अगला क्वेश्चन रैंडम होगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज होता है तो प्रोडक्ट का प्राइस कैसे अफेक्ट होता है? हाउ डज सब्स्टिट्यूट गुड चेंज अफेक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट? कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस नीचे गया तो प्रोडक्ट की डिमांड को क्या होगा? पढ़ चुके हो आप ये आपको आना चाहिए, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डन, तो हम ये पढ़ चुके हैं। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस ऊपर जाएगा, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, इफ टी बिकम्स मोर एक्सपेंसिव आई विल हैव मोर कॉफी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गोज अप, डिमांड फॉर प्रोडक्ट गोज अप। पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ये भी आपको आता है, इसका डायग्राम भी आता है आपको, बिल्कुल याद करो डायग्राम अब। एंड देखो बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में चल रहा है, और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो हम डायरेक्टली जिनसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में, वही चीजें यहां पे लिखी हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। चलो इसमें आपको 10 सेकेंड्स और दे देते हैं। टैक्स सब्सिडी का रिलेशनशिप आपने फाइंड करना है, आपको आता है ये, आपने नोट्स में ये चीज तो देखी ही होगी। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी गिव्स बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी गिव्स मार्केट प्राइस। तो अब ये तीनों चीजें याद हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ एलएफपीआर एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है और एलएफपीआर का फॉर्मूला क्या है? सी अगेन द क्वेश्चन इज रैंडम। पहला क्वेश्चन जीडीपी का था, ऐसे होती है रिविजन, कुछ नहीं रखना सामने, कोई सोर्स नहीं, अपने दिमाग से याद करो। एलएफपीआर का फॉर्मूला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला, एंड आई विल गिव यू मोर टाइम पर क्वेश्चन। एक्चुअली यू कैन हैव मोर टाइम पर क्वेश्चन, रख लो थोड़ा टाइम और। आई विल गिव यू 40 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। 25 थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, वील हैव 40 सेकेंड्स। एलएफपीआर का फॉर्मूला, एलएफपीआर इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका क्या फॉर्मूला है, इसको अपने सामने लिखना है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला अपने सामने लिखना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में क्या है।
हमने देखा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कोहॉर्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्संस डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में आपको क्या याद है? याद करो, कौन पब्लिश करता है, क्या ये मेजर करता है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कौन सी रिपोर्ट में आता है, याद करो। ये हमने नोट्स में देखा था। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बेसिकली 3 चीजें मेजर करता है, हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट, इन तीनों की पार्टिसिपेशन, राइट। हेल्थ में देयर इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड एडोलेसेंट बर्थ रेट। एम्पावरमेंट में सेकेंडरी एजुकेशन मेजर करता है और पार्लियामेंट्री सीट्स, और फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये चीजें हमने देखी थी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड कर्व के अलोंग भी मूवमेंट हो सकती है एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व की शिफ्ट भी हो सकता है। दोनों में क्या फर्क है? शिफ्ट ऑफ कर्व वर्सेस मूवमेंट अलोंग द कर्व, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। याद करो इस दो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। व्हाट इज शिफ्ट ऑफ कर्व एंड व्हाट इज मूवमेंट अलोंग द कर्व? ठीक है, ये तो आपको पता ही है। मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है जब अगर प्राइस क्वांटिटी ग्राफ है, प्राइस चेंज होगा तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। कोई भी ऐसा फैक्टर है जो उस ग्राफ पे नहीं लिखा है तो शिफ्ट ऑफ कर्व होगा। ये तो आई एम श्योर यू नो ओनली, है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये एमसीक्यू कर दो। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 मिनट देता हूं आपको, क्वेश्चन ही कर लो ये पूरा। कौशल विकास योजना भी पढ़ी है हमने, नोट्स में था। ध्यान से पढ़ना। देखो, अब ये चीज आई एम श्योर वरुण सर भी आपको समझाएंगे जब आप उनके साथ एलएमएस करोगे। इस क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका गलत होने का चांस मैक्सिमम है। क्यों है गलत होने का चांस मैक्सिमम? गलत होने का चांस मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि इसमें फैक्ट गलत होना बहुत क्लियरली, दिस कैन वेरी क्लियरली बी रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रूव द सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग कि ये सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी देगी, इस चीज को रॉन्ग प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या पता थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो रही हो, बट ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है। ये डायरेक्टली रॉन्ग होना बहुत ईजी है और यही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। आंसर 2 एंड 3 है, बट अगेन वी विल कंटिन्यू। ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, राइट। आगे चलते हैं। नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंशिएट करो। अगर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा तेज बढ़ रही है तो इस बात का मतलब आप क्या निकालते हो एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट? अगेन 1 मिनट देता हूं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, यू कैन टेक 1 मिनट फॉर इट।
You can see the questions are completely random. There is no order in which you are going to revise. और आगे चल के भी यही होने वाला है. आई नो टफ लग रहा है, आई नो गलतियां होने के चांस ज्यादा हैं, आई नो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, दैट्स ओके, लेट इट बी, होने दो, मुझे पता है डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए अभी. तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में मेन फर्क है कि रियल जीडीपी तो बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट होती है और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है. अब इसमें डिफरेंस क्या है? नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी से ज्यादा बढ़ रही है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है ना? ये डिफरेंस आई होप आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएमयू आपको याद करना है. व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बस आपको याद करना है. 10 सेकंड्स लगेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन है बस. Just need to remember what is diminishing marginal utility. That's it. ये तो आ गया होगा याद, ग्राफ भी याद आ गया होगा, आई एम श्योर, राइट? चलो नेक्स्ट. Employment can be given in 3 ways. There are 3 ways in which employment can be given. आपको वो 3 ways याद करने हैं और आपको ये याद करना है कि उन 3 ways में फर्क क्या है. जैसे वन ऑफ द वेज हिंट दे देता हूं, वन ऑफ देम इज फॉर्मल. एक तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है, 1 मिनट का टाइम है. और इनमें क्या फर्क होता है? व्हेन डू यू से समथिंग इज फॉर्मल, व्हेन डू यू से इट्स नॉट? याद करो. मैं आपको आज पावर दिखाना चाहता हूं रैंडम क्वेश्चंस की. ओके, so worker can be hired as salaried worker where formal recognition, professional or contractual worker or informal worker. now इनफॉर्मल वर्कर का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास लेबर राइट्स नहीं है. इनफॉर्मल वर्कर ओनली मीन्स दैट देयर एनफोर्सेबिलिटी इज लो. इट डज नॉट मीन दैट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू लेबर लॉज. दिस वाज द ओनली डिफरेंस आई वांटेड यू टू रिमेंबर. आगे चलते हैं. जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या ऐड करना होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा?
जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा? आई थिंक इट्स नॉट विजिबल हेयर, ढंग से दिख नहीं रहा है, बट हमने पढ़ा ही है, अभी हमने देखा था कि फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस में रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आपको रिलेशनशिप याद है तो इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, डिफरेंस बिटवीन फ्री गुड्स एंड फ्री ऑफ चार्ज गुड्स। फ्री गुड का क्या मतलब और फ्री ऑफ चार्ज का क्या मतलब? बहुत इजी है। फ्री मतलब जहां पर स्केर्सिटी ना हो, नॉट स्केर्स। फ्री ऑफ चार्ज मतलब जिनके पैसे ना लगते हैं बट वो स्केर्सिटी है। एमजी नरेगा के बेनिफिट्स किस किस को मिलते हैं? हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम एमजी नरेगा? अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सोचिए। एंड अगेन आप देखोगे कंप्लीटली रैंडम ऑर्डर में है। इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं। आई होप आपको याद आ ही गया होगा। सिटीजन जो 18 ईयर्स का है, रूरल हाउस होल्ड्स में अनस्किल्ड लेबर करने के लिए, जो काम करने के लिए रेडी है, उनको इसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, जीडीपी और जीवीए के बीच में रिलेशन बताना है। व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीवीए? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगेन वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट टू आंसर। जीडीपी और जीवीए के बीच में रिलेशनशिप बताना है। आंसर इज वेरी सिंपल। अगेन वही जो बात है कि जीडीपी जनरली मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है और जीवीए बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो अगेन वो जो टैक्स और सब्सिडी वाला रिलेशन है वही हमें यहाँ याद करना है। नेक्स्ट, मोनोप, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटली फ्रेम्ड है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस टाइप की जो मार्केट है, इस मार्केट के आपको मुझे फीचर्स बताने हैं। लीव द क्वेश्चन दैट्स ऑन द बोर्ड, फीचर्स बताने हैं इस टाइप के कंपटीशन के। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्केट? इस टाइप ऑफ मार्केट के फीचर्स क्या हैं? मीन शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू, इजी क्वेश्चन ही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज and where there are many firms, right, but there is some price making power, वो कुछ ब्रांड डिफरेंशिएशन है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मार्केट फॉर क्लोथ्स। वैन ह्यूजन की भी शर्ट है, एरो की भी है, बट कुछ लोग वैन ह्यूजन की ही खरीदेंगे, कुछ लोग एरो की ही खरीदेंगे, इवन इफ देयर इज अ प्राइस डिफरेंशियल। अगला, इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी है या प्लान्ड इकोनॉमी है? 10 सेकंड्स मिलेंगे। Is India a free market economy or planned economy? You very simple question, you'll get 10 seconds only for it. Of course, answer is India is both. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये एक प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है, 1 मिनट का टाइम है।
ठीक है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट राइज इफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंक्रीजिंग. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट. In the production possibilities curve, if I am here, that means I am inside the curve. I am at this point, that means I am on the curve, or I am outside the curve. इन तीनों पॉइंट्स को इंटरप्रेट करिए और बताइए कि इन तीनों का क्या मतलब होता है डिफरेंटली. इनका मतलब क्या है एफिशिएंसी के टर्म्स में, ऑन का मतलब क्या है, और आउटसाइड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन ऑब्वियसली मींस के फुल एफिशिएंसी है और फुल एम्प्लॉयमेंट है. इनसाइड मतलब कि लैक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एफिशिएंसी. और अगर आउटसाइड जाना है तो मुझे या तो अपनी क्वालिटी या अपनी क्वांटिटी या अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी. नेक्स्ट. ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, लेट्स लेट दिस गो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन करिए. इंडिया के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के डायमेंशंस क्या हैं और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ये डिफरेंट कैसे है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. I'll give you 2 minutes for this. और थोड़ा ब्रेक लेंगे इसके बाद. सारे कंपोनेंट्स याद करने हैं 10 के 10. ग्लोबल में 10 हैं, इंडिया में 12 हैं. इंडिया में जो 12 में 2 डिफरेंट हैं वो जरूर याद करने हैं. क्या फर्क है. डन. तो ग्लोबल में न्यूट्रिशन, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही है. हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, फॉरगिव मी. हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी है. एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और अटेंडेंस है. और लिविंग स्टैंडर्ड्स के 6 क्राइटेरिया हैं. इंडिया में 2 क्राइटेरिया एक्स्ट्रा हैं, एक मैटरनल हेल्थ और एक बैंक अकाउंट्स. अब लेट्स टेक अ ब्रेक हियर. यहां रुकते हैं थोड़ी देर और पहले बताओ कि कैसा लग रहा है. डिफिकल्ट लग रहा है, हालत खराब हो रही है रिवीजन करने में, ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा. ऐसा फील होता है प्रीलिम्स वाले दिन, क्योंकि हमारी तरीका जो है रिवीजन करने का वो है सीक्वेंशियल. ये पढ़ा, ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. पढ़ा भी ऐसे, रिवाइज भी ऐसे किया. ब्रेन भी कंफर्टेबल, आप भी कंफर्टेबल. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पहला यहां से, दूसरा यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी तरीके से. राइट. कैन यू सी द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज. कैन यू सी द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज. कैसा लग रहा है करके.
कैसा लग रहा है एक्सरसाइज करके? अभी तक हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन किए हैं। आई एम श्योर आपको दिक्कत आ रही होगी, डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, दिक्कत आ रही होगी, अजीब लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, बट देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे टू डू इट। यही तरीका है। अब आपको समझ आया होगा कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको लगता तो है, देर इज अ परसेप्शन इन योर हेड दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। आपको लगता है आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, बट एक्चुअली नहीं है वैसा। एक्चुअली बहुत गैप्स होते हैं। So am I able to successfully show you the gaps in your preparation and show you why learning techniques matter? देखो, इस पूरी यूपीएससी इंडस्ट्री में this word active recall was invented by me or at least brought by me। मेरा खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यूपीएससी में कोई इसकी बात नहीं कर रहा था बिफोर आई केम हियर। आप मेरे चैनल पे जाके अगर पॉपुलर वीडियोस भी देखोगे, सबसे पहले मैंने एक्टिव रिकॉल की वीडियो बनाई थी, फिर ऑब्वियसली लोग आते हैं कॉपी करने, एंड आई थिंक इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो मैं तो थैंक यू बोलता हूं उनको, मतलब बहुत कॉपी किया लोगों ने मुझे। मेंस रेडी बाय दिसंबर वर्ड भी मैंने ही बताया था, अब सबको एकदम से याद हो गया कि मेंस रेडी होना होता है। बट जस्ट रिमेंबर दिस इज हाउ इट्स अप्लाइड। ठीक है, बोल कोई कुछ भी ले, करना बहुत कम लोगों को आता है। मैं जब आपको अपनी खुद की एंक की टेक्स्ट दिखाऊंगा, मैंने पूरा स्पेक्ट्रम की टेक्स्ट बना रखी है, मैंने पूरे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की टेक्स्ट बना रखी है। मैंने पेपर 1 को अच्छे से रिवाइज किया था, तो 152 मार्क्स आए थे पेपर 1 में। ये मेंस में और भी ज्यादा एप्लीकेबल है, और मैं आपको इसको और यूज करके दिखाऊंगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आर यू एबल टू सी कि यार मेरी प्रिपरेशन ऐसे रिवाइज करके बहुत बेटर होगी। और अभी तो ये फर्स्ट वीक है, जब सेकंड वीक होगा तो क्वेश्चंस इसके भी होंगे, जो आज हम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस भी होंगे, और नेक्स्ट वीक के भी होंगे। अब सोचो जब 10th वीक होगा तो पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर रैंडमली इकोनॉमी का आ गया, फिर रैंडमली ज्योग्राफी का आ गया, फिर रैंडमली मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया, और आपने सब याद किया हुआ है। तो स्टैटिक पे तो ऐसी कमांड हो जाएगी कि यार अगर स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया तो हमारा तो गलत नहीं हो रहा। ये समझ आ रहा है ना पॉइंट? कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है। और कोई कह रहा है खुद से क्यों कर रहे हैं? अरे मत करो खुद से, मेरे साथ कर लो, मुझे पता है नहीं करोगे आप, मेरे साथ कर लो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं इसके लिए। ठीक है, आज अगर गलतियां हो रही हैं, टुडे इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, या अगर आज आपको लग रहा है आई एम अनएबल टू रिमेंबर, इट इज एब्सोल्युटली ओके। इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लर्न दिस टेक्निक, राइट? लर्न दिस टेक्निक, लर्न दिस आइडिया कि ऐसे याद करना है। बुक बंद करके रैंडम क्वेश्चन फ्लैश करे और मुझे, दीज आर कॉल्ड फ्लैश कार्ड्स, क्वेश्चन शुड फ्लैश एंड आई शुड बी एबल टू रिमेंबर। ऐसे याद होगा तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी का क्वेश्चन है, ये आप बता दोगे आसानी से, ये आप 4-5 महीने बाद नहीं बता पाओगे, आज तो बता ही दोगे, तो छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन शायद थोड़े कम फॉन्ट में है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं। Which one of the following compiles information on industrial disputes? आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट्स और लेऑफ्स, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन कंपाइल करता है इंडिया में? Who is the one who compiles all this information? ऑप्शंस अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए, हमने नोट्स में पढ़ा है ये। कौन कंपाइल करता है इनकी इंफॉर्मेशन? ये आंसर इज लेबर ब्यूरो। हमने पढ़ा था लेबर ब्यूरो से परमिशन लेनी पड़ती है, वहां डेटा कंपाइल होता है, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। जिनी कोएफिशिएंट बताना है आपने, कैलकुलेट कैसे होता है, एक कर्व है जिसके बेसिस पे जिनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट होता है, उस कर्व का नाम क्या है, और इसकी मेन यूजेज क्या है। 1 मिनट लगेगा मेरे हिसाब से। इस बार के प्रीलिम्स में जिनी कोएफिशिएंट इज वेरी लाइकली
in this year's prelims as per me because of the news that has come out. तो याद करो, पूरे ढंग से याद करो जीनी कोएफिशिएंट को. करो याद. So Lorentz curve, Gini coefficient, line of perfect equality, triangle of inequality. I hope आपको ये सब याद आया हो, right? Lorentz curve कैसे बनता है, etc. I hope you remember this. चलो next question. Negative externality के लिए what is the name of tax? वो तो चलो क्वेश्चन में लिखा है पिगोवियन टैक्स. जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, why does the market fail? सिंपल सा क्वेश्चन है. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना नेसेसरी क्यों है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना नेसेसरी क्यों है? सिंपल क्वेश्चन है. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे गवर्नमेंट को टैक्स लगाना जरूरी क्यों है? पढ़ा है ये क्वेश्चन हमने. सिंपल सी बात है कि जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है तब ओवर प्रोडक्शन होती है. देयर इज ओवर प्रोडक्शन एज कंपेयर्ड टू द सोशली ऑप्टिमल आउटकम, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोडक्ट टू एंश्योर दैट द क्वांटिटी कम्स बैक टू सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी. ग्राफ से इसकी एक्सप्लेनेशन है. आगे चलते हैं. जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज होता है तो डिमांड कैसे इफेक्ट होती है, ये याद करना है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज हुआ, डिमांड कैसे चेंज होगी? Price of complementary goods change, how does the demand change? So in these questions always think of an example. What is the example here? Complementary good is tea and sugar, coffee and sugar, Kindle and ebook. If ebook becomes more expensive, Kindle will not be bought, right? So price of complement goes up, demand goes down. Prelims 2021 का क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट. आगे चलते हैं. जीडीपी डिफ्लेटर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन से बेटर मेट्रिक कंसिडर किया जाता है. बेसिकली क्वेश्चन ये है, ये आपसे ऐसे नहीं पूछा जा सकता प्रीलिम्स में. जो जीडीपी डिफ्लेटर है, हाउ इज इट्स मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंट फ्रॉम सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई? सीपीआई डब्ल्यूपीआई से हाउ इज द मेजरमेंट डिफरेंट? ये डिफरेंस आपको याद करना है कि डिफरेंस क्या है. सिंपल है, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. इफ यू लुक एट द डिफरेंस, CPI, WPI are always calculated with a basket of goods. Deflator does not have any sort of basket of goods. This is also a previous year question. मैं जान के यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस डालता हूँ ताकि आपके PYQs भी यहीं रिवाइज हो जाएं. I make these cards very strategically for this purpose. Okay. National income is equal to what? This is a previous year question from 2013. You have 1 minute. Solve. Choose the most appropriate answer.
not the absolutely correct answer, because the absolutely correct answer is not part of the options. So the most appropriate answer possible. ठीक है, आगे चलते हैं. आंसर हियर इज ऑब्वियसली मनी वैल्यू ऑफ फाइनल, ऑप्शन डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी को लिंक करना है. लिंक द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व. इस आइडिया को समझाना है. 30 सेकेंड्स हैं. जो पीपीसी की शेप है वो ऐसी क्यों होती है वो आपको इससे समझ आएगा. डन. जैसे हम पीपीसी पे ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, एक चीज की प्रोडक्शन गिव अप करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ बर्ड आउट शेप. एनीवे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, इस टर्म को आपने समझाना है. इवन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैं आपके काफी सारे, ऑल्दो सजल सर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सेशन होगा आपका, still a lot of previous year questions I will ensure that you revise here only. Done? चलिए. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज, देखो एम्प्लॉयमेंट जो होती है इट इज फॉर लाइफ. एम्प्लॉयमेंट से आप तभी निकालते हो जब आपने कोई फ्रॉड किया या डिसिप्लिन इशू है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, अदरवाइज इट इज फॉर लाइफ टेक्निकली. फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट इट विल बी फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स एक्सेट्रा. राइट, पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट, सिंपल आंसर है. आगे चलते हैं. India's GDP estimation method in 2015 changed dramatically. What were the changes introduced? 2015 में हमने क्या चेंजेस करे जिससे हम अपनी जीडीपी को बेटर एस्टिमेट कर पाए. बहुत लाइकली क्वेश्चन है इस साल, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एसएनए है यूएन और आईएमएफ का, a new update is going to come this year or next year. So this is likely this year in the coming year in the prelims. So what are the changes that we made in India's GDP estimation with the 2015 revision of our base year? And this question also came in 2021 mains. तो even mains के PYQs एक आधे हम यहाँ पर देख रहे हैं. अब क्या चेंज किया हमने? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से MCA 21 डेटाबेस स्टार्ट किया. हमने बैलेंस शीट्स देखना स्टार्ट किया, नॉट ओनली सर्वे. हमने वैल्यू एडेड मेथड यूज किया, नॉट ओनली प्रोडक्शन मेथड. हमने हेडलाइन इंडिकेटर और सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स जीडीपी और जीवीए के हिसाब से डिसाइड किए. हमने रेगुलेटरी बॉडीज का डेटा लिया, रूरल इंस्टीट्यूशंस का डेटा लिया, ये हमने चेंज किया. और ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज का भी हमने डेटा लेना स्टार्ट किया. एंड इट इज मोर इन लाइन विद द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऑफ द IMF and UN now than it was earlier. Okay. The employment which is associated with the inadequacy of productive capacity to create enough jobs for all and willing to work, all those able and willing to work, refers to what? कि इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है कि
इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है कि वो सबके लिए जॉब क्रिएट कर सके। इकोनॉमी खराब चल रही है और इस वजह से वो सबके लिए जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? दिस इज स्ट्रक्चरल। देयर इज अ मिसमैच between the jobs available in the market and the job skills. This we have read. This is fine. Okay. GDP और GNP का रिलेशनशिप आपने मुझे बताना है। There is a simple term. GDP is equal to GNP plus what? GNP is equal to GDP plus what? ये आपको मुझे बताना है। There is one term that you have to tell me the answer. It's very simple. The answer is net factor income from abroad. ये इसका रिलेशनशिप है, राइट? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. ये टर्म नेगेटिव भी हो सकती है, net factor income from abroad. This is the term. Okay. All right. Next. How is poverty measured in India? 4 लाइन बतानी है। Poverty इंडिया में मेजर करने के लिए there are 4 lines that you must answer. You have to tell me those 4 lines. How is poverty measured in India? Head count ratio on the basis of consumption expenditure. That consumption expenditure data is taken from National Consumption Expenditure Survey, which is done by National Sample Survey Office or now National Statistics Office, on the basis of Tendulkar poverty line, on the basis of mixed recall period. ठीक है, next. ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है गवर्नमेंट की, इसमें किस किस को बेनिफिट्स मिलने हैं? Who all are going to get benefits in this employment linked incentive scheme of the government? और क्या बेनिफिट्स मिलने हैं? This scheme again very likely this year, Honorable Prime Minister has been focusing a lot on this scheme. So जो EPFO से पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं उनको हम फर्स्ट टाइमर बोलते हैं यहाँ पर, एंड 3000 पर मंथ के इंसेंटिव्स हैं जब वो एडिशनल एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर हायर करेंगे। प्लीज रीड दिस स्कीम केयरफुली दिस टाइम। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3: यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस। अगर आपको कोई क्वेश्चन यहां पर याद नहीं आता है, लेट्स से आपको ELI नहीं पता था, यू राइट ELI इन वन प्लेस एंड द मोमेंट द सेशन एंड्स यू देन रीड ELI। ये सेशन वो नहीं है कि हम यहीं पे इसको पढ़ें, ये पढ़ने का सेशन नहीं है, ये रिवीजन का सेशन है। कुछ याद नहीं आता है तो इमीडिएटली आफ्टर द सेशन यू हैव टू रिवाइज। यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस और करंट डेली स्टेटस में फर्क बता दो। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा था इन 2023 एंड कभी भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में जो चीजें पूछते हैं उनका वैसे भी प्रीलिम्स में आने का चांस काफी हाई होता है। उसके बाद क्या फर्क है? यूजुअल स्टेटस में पूरा 1 साल देखा जाता है, इसमें 2 चीजें हैं, सब्सिडरी स्टेटस और प्रिंसिपल स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में लास्ट 1 वीक और इसमें किसी एक दिन एम्प्लॉयमेंट मिल गई हो, और करंट डेली स्टेटस में इंटेंसिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो चेक्ड। सो अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखूं, यूजुअल स्टेटस में सबसे कम आता है, फिर इसमें, फिर इसमें। नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से नॉर्मल और इंफीरियर गुड में क्या फर्क है? हाउ आर नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स डिफरेंट व्हेन दे आर व्यूड फ्रॉम द लेंस ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? दैट इज द क्वेश्चन। बेसिकली आपको नॉर्मल और इंफीरियर गुड का डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस?
नॉर्मल गुड में सिंपल कहानी है, इनकम इंक्रीज, प्राइसेस इंक्रीज। इंफीरियर गुड में और अदर डिमांड इंक्रीजेस। इंफीरियर गुड में सिंपल कहानी है, योर इनकम विल इंक्रीज, यू विल नाउ डिमांड लेस ऑफ दिस। इंडिया की जीडीपी और नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स कौन रिलीज करता है और वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? विच इंस्टीट्यूशन कंप्यूट्स एंड रिलीजेस इंडियाज जीडीपी एंड नेशनल इनकम एस्टिमेट्स एंड विच मिनिस्ट्री डज दैट इंस्टीट्यूशन कम अंडर? सो एनएसओ करता है और मॉस्पी के अंडर आता है। राइजिंग फॉलिंग छोड़ दो, टेल मी द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR। इस कॉन्सेप्ट को आपको मुझे बताना है, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, यू हैव टू टेल मी। सिंपल मतलब है ICOR का, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाउ मच मनी डू आई हैव टू पुट, हाउ मच कैपिटल डू आई हैव टू पुट टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 1 यूनिट। सिंपल। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है और नेशनल इनकम अकाउंट्स का एक बार वो चार्ट याद करो कि इसमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहां आती है। तो कीप गोइंग, हिम्मत नहीं हारनी है। Last few questions are left. Last few questions are left. Let's do them properly and be done with it. So personal disposable income is personal income minus personal tax and tax and non-tax fines, जो भी निकलता है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बनती है। बेसिकली ये चार्ट याद होना चाहिए यार, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, पूरा याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉवर्टी ट्रैप? सिंपल कहानी है, पॉवर्टी ट्रैप का मतलब क्या है? ये टर्म हम पढ़ते हैं, ऑल्दो प्रीलिम्स के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में पूछा जा सकता है, बट पॉवर्टी ट्रैप का मीनिंग आपने मुझे बताना है। व्हाट इज पॉवर्टी ट्रैप? सिंपल क्वेश्चन। Poverty trap is that your future income is less than your present income, right? So you are always trapped in the vicious cycle of poverty. Next, GDP deflator, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको हम आगे चल सकते हैं इसको लेकर। ओके, ये भी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आएगा। आप बस ये बता सकते हो that when government gives a subsidy, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो विच कर्व शिफ्ट, कौन सा कर्व शिफ्ट होता है एंड वेयर डज द कर्व शिफ्ट? डिमांड सप्लाई ग्राफ में कौन सा कर्व शिफ्ट होता है एंड वेयर डज इट शिफ्ट? दिस यू कैन टेल मी इफ गवर्नमेंट गिव्स अ सब्सिडी। So of course that is the supply curve and it shifts outward. Done guys। अब इस सॉफ्टवेयर को आप खुद कैसे यूज कर सकते हो, इस पे आई विल सून बी मेकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अगर आपको करना है तो प्लीज गो फॉर इट। इन द नेक्स्ट वीक आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। एक और रिकमेंडेशन है बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हम नेक्स्ट अपने वी लुक एट द नेक्स्ट वीक्स टारगेट्स। ये वीडियो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप देखो, ये एक प्रीलिम्स एनालाइजर है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज ये वीडियो आज देख लेना, प्लीज वॉच इट टुडे। नाउ दिस बीइंग सेड, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा? डू यू थिंक यू आर डूइंग अ डिसेंट इनफ जॉब हियर? कैसा लगा आपको? डू यू थिंक यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब? थोड़ा
सीखने को मिला। At least did you learn, at least did you learn that there needs to be a different way, there needs to be a different way in which you read, a slightly different way in which you read. अब जब नेक्स्ट वीक, नहीं मैं इसकी पीडीएफ आपसे बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता आप ये क्वेश्चंस अभी दोबारा देखो। नेक्स्ट वीक जब हम एक्टिव रिकॉल करेंगे, देन देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट वीक टारगेट्स एज वेल एज दी सेम क्वेश्चंस अगेन। ये सेम क्वेश्चंस फिर से आएंगे ताकि हमारी मेमोरी में सीमेंट हो जाए, राइट? एंड दैट इज वाई यू नीड टू नाउ लर्न डिफरेंटली। अब आपको सीख के ऐसे याद करना है कि किताब बंद करके भी आपको याद हो। ये तो मान लोगे कि अगर मेरे को पूरा स्टैटिक ऐसे याद होगा, मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। If I was able to remember each of these questions without any hesitation, I would be sailing through prelims. इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि अगर मुझे इस लेवल पे पूरा स्टैटिक आता होगा तो मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा, है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलो अब बात करते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हम क्या करने वाले हैं इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? चलिए, टारगेट्स फॉर वीक 2। आपने अभी तक 4 चीजें पढ़ी हैं। सो फार यू हैव रेड माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड एनआईए। इसमें अगर कोई बैकलॉग रह गया हो तो इसको प्लीज रिवाइज करें। जो टेस्ट आपने नहीं दिए हैं वो टेस्ट प्लीज दे दें, है ना? अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, वो बैकलॉग एक बार इकट्ठा होता गया तो फिर वो कभी खत्म नहीं होगा। देन नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटी। फेयरली इजी टॉपिक है। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए हैं, मेंस में 2 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम इनइक्वालिटी। तो अगले साल के प्रीलिम्स में it is likely that one or the other conceptual questions might be asked from here, because ऐसा ट्रेंड कई बार देखा गया है। Then inflation and money, inflation and money, ये हम पढ़ने वाले हैं। मनी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी is probably the most important topic that you can read in economics, because questions will come from here. So money and monetary policy we are going to have next week. इन्फ्लेशन में अगेन पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड देन बैंकिंग। तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सैटरडे को हमारा टेस्ट है, सैटरडे को हमारा दोबारा से एक्टिव रिकॉल सेशन है। ट्यूसडे को आपका लाइव एमसीक्यू सेशन होने वाला है विद वरुण सर। जो इस वीक पढ़ा है उसी का लाइव एमसीक्यू सेशन है, और यहाँ पर आप एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स और एमसीक्यू एप्टीट्यूड सीखने वाले हो। और थर्सडे को आपका पीवाईक्यू सेशन है विद सजल सर। जो हमने इस वीक पढ़ा उसके पीवाईक्यूज आप सजल सर के साथ करोगे ऑन थर्सडे, ठीक है? नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जब आप पढ़ोगे, इसमें जो थ्योरीज ऑफ इनइक्वालिटी हैं और जो मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा, छोटा टॉपिक है, आई एम श्योर एक दिन में आराम से कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में यार 2-3 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। वन इज मेजरमेंट। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में फर्क, अलग अलग टाइप के सीपीआई, कौन इसको निकालता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। बुक बंद करके जरूर ट्राई करना कि आप ये याद कर सको। इस पे क्वेश्चन आते हैं। Who calculates CPI? How is CPI different from WPI? What is CPI rural? What is CPI combined? What is CPI for agricultural laborers? These type of questions do come. Who comes out with these figures? How it is measured? What is the methodology? What is the base year? बहुत important है, right? Measurement is very important. Second
very important concept in inflation is the idea of effects of inflation. इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है. Effects का क्या मतलब? Who does inflation benefit and whom does it hamper or whom does it affect in a negative way? जैसे what is the effect of inflation on loan giver and loan taker? What is the effect of inflation on savings and investment? What is the effect of inflation with taxes? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फिस्कल ड्रैग, विच इज एन ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर इन द इकोनॉमी. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर जो हमें पता होना चाहिए. इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं. इन्फ्लेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है, थोड़ा फैक्चुअल है, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं देखा गया है, बट दिस ईयर इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज करंटली इन इंडिया इन्फ्लेशन इज लोएस्ट इट हैज एवर बीन. 1% पे चल रही है इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन एट द मोमेंट. सो द आइडिया ऑफ कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ये आ सकता है. सीपीआई बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी, ऑल्दो करंट अफेयर्स में ऑफकोर्स हम कवर करेंगे, न्यूज में है तो, एंड करंट अफेयर्स भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड है. वहां पर भी मैं ही आपको इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, सो यू विल हैव इनफ इंफॉर्मेशन. बट अगेन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, प्रॉक्टरिंग इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट मिस आउट. इन्फ्लेशन का चैप्टर इस बार मेरे हिसाब से अगले साल एक क्वेश्चन आ रहा है इन्फ्लेशन पे, सीपीआई और इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा न्यूज में डिस्कस हुआ है. द थर्ड टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू रीड बिफोर सैटरडे, बैंकिंग आपको सैटरडे को ही पढ़ना है, तो बैंकिंग की बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे. बट यू आर गोइंग टू रीड मनी. Now this money topic is the basis of everything else that you are going to read in economics. आप सब कुछ मनी के टॉपिक से एक्सप्लेन कर सकते हो. प्लीज इसको मगअप करने की कोशिश ना करें, इसको रटने की कोशिश ना करें, और इसको कंसेप्चुअली समझें. व्हाट इज डिमांड ऑफ मनी, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, इसका भी अपना एक खुद का ग्राफ है, कुछ इक्वेशंस हैं. क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन चीजों से. वेलोसिटी ऑफ मनी, राइट, मनी एंड प्राइस लेवल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. अगर आप इसको कंसेप्चुअली पढ़ोगे, ग्राफ के साथ पढ़ोगे, इक्वेशंस के साथ पढ़ोगे, आपको हो सकता है एक बार पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई वी हैव कम टू मनी. इसमें डिस्कशन ऑन गोल्ड एज करेंसी भी होगा. And even this I feel is very important this year because of the volatility we have seen in the commodity markets, how gold prices have gone up and then down, right? That is fairly important. मनी के साथ एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी. ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है. द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक इन इकोनॉमिक्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ओके, तो इसमें ऑफ कोर्स व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको भी अगर आप व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ये जो सारी चीजें होती हैं यहाँ पर हम M1 M2 वगैरह भी देखेंगे. इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं यार. तो आप जितना लॉजिकली ग्राफ्स के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इसको पढ़ोगे, उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा. अगर आपने ये मगअप करने की कोशिश करी, अगर आपने ये रटने की कोशिश करी, तो ये याद नहीं होगा. बाद में दिक्कत आएगी ही आएगी. टाइम थोड़ा ज्यादा लगे तो लगा लेना, इसमें मगअप मत करना. सोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं? सेम इंस्ट्रक्शंस हैं इकोनॉमी के लिए, एब्सोल्युटली सेम इंस्ट्रक्शंस आर देयर. इफ यू हैव योर ओन नोट्स, आपने पहले से कहीं से पढ़ा हुआ है तो वो, नहीं तो आपके पास मेरी वीडियोस हैं, मेरे नोट्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हो. स्टैटिक में मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं. ऑब्वियसली करंट अफेयर्स हमें ऐड करना है, वो मैं ही पढ़ाऊंगा. मैंने खुद ही ये नोट्स बनाए हैं, तो आई विल बी एबल टू सप्लीमेंट देम अकॉर्डिंगली ऑल्सो. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हमें अब अगले सैटरडे तक कंप्लीट करने हैं. आई वॉन्ट दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू कि आप अगले सैटरडे तक जितने भी टेस्ट हैं, दैट यू विल गिव ऑल द टेस्ट and you will analyze those tests absolutely in the same manner the way I have told you today, in the absolute appropriate manner. आप टाइम लगाओगे एनालिसिस में, लगने तो थोड़ा, अगर आपको लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इट्स फाइन, बट यू विल लर्न अ लॉट. दिस इज द ओनली वे टू मेक अ जेन्युइन इंप्रूवमेंट.
ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही इंप्रूवमेंट होगी। अब अगले वीक का जो एक्टिव रिकॉल होगा दैट विल बी स्लाइटली मोर टफ। देखो मेरा आइडिया क्या है कि आप अब ये पढ़ो, जो आप 4 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनका हमने आज एक एक्टिव रिकॉल किया, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनको मार्क करके रखूंगा। अगले वीक इनके क्वेश्चंस आएंगे, देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। उसके अगले वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड द क्वेश्चंस ऑफ व्हाटएवर वी रीड इन द थर्ड वीक। तो हम कॉन्स्टेंटली एक्टिव रिकॉल करते रहेंगे। तो इवन इन द 10th वीक 12th वीक आप फिर से जीडीपी रिवाइज कर रहे होगे, आप फिर से अनएम्प्लॉयमेंट रिवाइज कर रहे होगे, यू विल कॉन्स्टेंटली रिवाइज व्हाटएवर यू हैव रेड इन द पास्ट, सो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, बट मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए यार, सारे टेस्ट देने और उनको एनालाइज अच्छे से करना है। सारे टेस्ट देने हैं और उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है यार, आई होप। देखो इस बार ये जो हमने प्रीलिम्स नेविगेटर डिजाइन किया है ये नॉर्मल कोर्सेज से थोड़ा अलग है। जनरली आवर आइडिया इज दैट वी जस्ट लुक एट कि यार अच्छा पढ़ा दिया हमने, आपको क्लासेस ली, आपने भी पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, आपको क्वेश्चंस करा दिए और हम चले गए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, प्रीलिम्स नेविगेटर में हम वही चीज कर रहे हैं जो मैंने आपको ओरिएंटेशन में बोली थी। आई एम टेकिंग दिस कोर्स एज इफ आई एम टॉकिंग टू माई यंगर ब्रदर एंड दे आर अटेम्प्टिंग द पेपर। तो जैसे मैं अपने यंगर ब्रदर को इंस्ट्रक्शंस देता कि यार, या यंगर सिस्टर को इंस्ट्रक्शन देता कि यार ये टॉपिक्स पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट वीक में टेस्ट लूंगा, सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू दिस विद यू। आई होप अब आपको पूरे कोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। यू हैव डन 1 week of tests, you have done your first active recall and mentorship session. Tomorrow you are going to have your proper test, 100 question test, and then next week you are going to have PYQs also and LMS session also, and then again on Saturday we are going to have a session like this. I hope now the entire concept of the course is clear to you. Yes? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, डन डन, ठीक है। Again, this is not the last mentorship session, this is the first session. I don't want to take more than 2 hours because I also feel कि आप लोगों की attention span की एक limit है। There are going to be lots of things that we discuss in the future also. Similarly, we are going to discuss a lot of things on how to solve MCQs, how to go about solving tests, even in the future. मुझे sure है that in every mentorship session, I will be able to add value to you. And that is the idea here. So again, next week, please study these 3 things, study hard, make sure you give all the tests and you analyze them, and I will see you on Saturday. Thank you guys for your time. See you on Saturday, guys.